नेक्स्ट स्लाइड हुई क्या मेहंदी सर, दिख रही है नेक्स्ट स्लाइड? ओके। सो दिख रही है सर। हाँ, ये वाला तो मैंने यहाँ तक करा दिया था। ड्रेजर्स, सेक्शन सक्शन ड्रेजर्स था, ट्रेलर सक्शन ड्रेजर था, कटर सक्शन ड्रेजर था। धीरे धीरे फिर हम लोग यहाँ पर बकेट चेन ड्रेजर स्टडी कर रहा था, फिर बकेट ड्रेजर, फिर ड्रैग लाइन ड्रेजर, देन फ्लोटिंग ग्रैब ड्रेजर, देन एम्फीबियस एक्सकेवेटर। यहाँ तक हो गया था। अब इधर से शुरू करना था पंपिंग इक्विपमेंट। सो आप लोग, सो यू ऑल नो that what are pumps and what is the particular potential of these pumps, and these are very of different of particular different for different challenges we can use these pumps to do such type of operations. These five are basic operations. Suppose first is removing water from removing water from pits, tunnels, etc. Next is unwatering coffer dams. Third is lowering the water table for excavation. Fourth is furnishing water for many types of utility services. And fifth is foundation grouting. So means under construction projects, how you have to use pumps. So pumps plays very important role, because without these pumps you can't actually pump out these five functions, and because of that your further construction process may get delayed and may get impacted. So next, the proper solution to set the equipment which will take care of pumping needs adequately. एक second. अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या है? लोअर टोटल कॉस्ट है। Considering the investment in pumping equipment, the cost of operating the pumps, and any losses that will result from possible failure of the pumps to operate satisfactorily. जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी कंपनीज हैं जो पंप्स मैन्युफैक्चर करती है, बट कितना कॉस्टली पड़ेगा और कितना कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, सो ये सब हमें यहाँ पर इसमें चेक रखना पड़ता है कि किस तरीके से आप पंप्स को यूज करेंगे। Then among the factors that should be considered in selecting construction pumps, अब construction pumps को select करने के लिए आपको 4 parameters follow करने पड़ेंगे। First is dependability, means आपकी particular site कहाँ पर है, आपकी site पे challenges क्या है, rocky terrain है कि loamy terrain है, क्या है। Second is availability of parts for making repairs. अब suppose बहुत deep pumping equipment use हो रहा है, but बीच में breakdown हो जाता है, या because of some friction, that particular parts of that particular pumping equipment get failed. So how you will be going to repair that on site? Then third is simplicity to permit easy repairs. Fourth is economical installation and operation. Then classification of pumps on the basis of first is reciprocating pumps, then diaphragm pumps, then centrifugal pumps of air operated or self priming. So these all 4 types of pumps are generally used in our construction industry. So reciprocating pumps, इसमें आपके पास 2 तरह के मिलेंगे, ट्रिप्लेक्स वाला मिलेगा और डबल डुप्लेक्स, डबल एक्टिंग पंप या ट्रिपल या ट्रिप्लेक्स, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, वो उसकी कैपेसिटी को इनहांस कर रहे हैं, एंड हाउ यू आर यूजिंग these particular different types of pumps for different types of speed or different type of work that or different type of challenge that you have to counter at your site. रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के एडवांटेजेस क्या है? ये यूनिफॉर्म रेट पर चलता है, एंड दिस देयर कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज, दे हैव रीजनेबली हाई एफिशिएंसी, दे आर यूजुअली सेल्फ प्राइमिंग। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत हैवी वेट होगा, लार्ज साइज होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ वाल्व ट्रबल, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज एट वेरी बिगर साइज, सो उसमें बहुत ज्यादा means handling problems आती है, pulsating flow of water, the danger of damaging a pump in operating against a high head. सर yes आस्था। सर इसमें एडवांटेजेस लिखे हैं कि दे आर यूजुअली सेल्फ प्राइमिंग। हाँ, सेल्फ प्राइमिंग मीन्स आपको उसको प्रॉपर बार बार उसको मतलब वाटर से प्रिवेंट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली pumps generally work under water and under some situations, so automatically उसमें wear and tear loss minimum होगा,
सो जैसे सेल्फ ग्लीजनिंग होती है, ऐसी सेल्फ प्राइमिंग प्रोसेस होती है, so that helps to work or to function the particular type of pump in a particular efficient way. अच्छा, मुझे लगा कि सर मतलब जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो चीज प्राइम हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है। नहीं नहीं, ये इक्विपमेंट की बात हो रही है, बिकॉज आप उस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हो एट दैट पर्टिकुलर चैलेंजिंग साइट। तो उसका वेयर एंड टेयर अगर एक ही बार आपने यूज करा फिर आप वेयर एंड टेयर करोगे तो हाउ यू विल यूज टुमारो। सो मींस अगर उसमें सेल्फ प्राइमिंग प्रोसेस नहीं होगी तो फिर कैसे करोगे आप। देन डिसएडवांटेजेस ये आपको बता दी थी। देन डायफ्राम पंप्स ये कैसे होते हैं, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल डायफ्राम इज अल्टरनेटली रेज्ड एंड लोअर बाय द पंप रॉड। अब ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं कि किस तरीके से कौन सा काम आपको कहां पर करना है। अब मे बी डायफ्राम पंप आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप से ज्यादा इजी हो और बहुत सारी साइट्स में आप रेसिप्रोकेटिंग पंप को की जगह डायफ्राम पंप यूज कर सकते हो। देन सेंट्रीफ्यूगल पंप, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम इम्पेलर भी बोलते हैं बिकॉज इट इम्पार्ट्स टू वाटर पासिंग थ्रू द पंप अ वेलोसिटी sufficiently great to cause it to flow from the pump even against considerable pressure. अब आपने ऐसे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी फिजिक्स में, बट यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स मींस ये कैसे एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस टाइम पे भी पंप आउट कर सकता है जो चीजें आपकी डीप इन फाउंडेशन में है या डीप इन या आपको डी वाटरिंग करनी है कंप्लीट कैसन्स को, जैसे कैसन्स के अंदर वाटर है आपको उसको डी वाटर करना है, तो हाउ यू कैन ऑपरेट इट इन अ बेटर वे। देन एयर ऑपरेटेड, अभी इसके डायग्राम्स नहीं है बट यस आपको मतलब यहाँ पर ये प्रोसेस ढूंढनी कि किस तरीके से आप एक पंप को सेलेक्ट कर रहे हैं एंड पंप्स के साथ पाइप का नेटवर्क क्या है एंड वो कितना उसका ड्यूरेशन है, कॉस्ट फैक्टर कितना पड़ रहा है, कितनी डेप्थ तक जा रहे हो। तो ये जो लास्ट में जो पॉइंट्स हैं इसको एक बार देख लीजिए। इन ऑर्डर टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ पंपिंग वाटर, क्या क्या हमें करना जरूरी है। रेट एट विच द वाटर टू बी पंप्ड, सपोज वाटर बहुत सारा है बट आपको किस रेट पे बाहर निकालना है। बिकॉज जैसे हम अपना स्टोरेज टैंक फिल करते हैं तो आधे घंटे में आपका टैंक फिल होता है 1000 लीटर का या 500 लीटर का, तो सेम वे आपको डी वाटर करना है तो पंप आउट करना है वाटर या पंप इन करना है कुछ भी, तो कैसे आप मतलब रेट डिफाइन करोगे, मींस वेलोसिटी। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द लिफ्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वाटर सरफेस टू द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। अब ये पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मींस जहां पर सोर्स है और जहां पर सोर्स से फिर आप कहां पर आप उसको डिस्चार्ज करेंगे। देन प्रेशर हेड एट डिस्चार्ज, देन वेरिएशन इन वाटर लेवल एट सक्शन और डिस्चार्ज। अब आप पंप इन कर रहे हो तो डिस्चार्ज होगा और पंप आउट कर रहे हो तो सक्शन होगा। तो एल्टीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्ट, देन हाइट ऑफ द पंप अबव द सरफेस ऑफ द वाटर टू बी पंप्ड, साइज ऑफ पाइप टू बी यूज। अब पाइप का डायमीटर, अब डायमीटर हो सकता है कि पहले ब्रॉडर हो फिर नैरो हो फिर और नैरो हो या रिवर्स भी हो सकता है। मींस आप सक्शन कर रहे हो कि आप डिस्चार्ज कर रहे हो, तो सक कर रहे हो तो आपको वहां पर आप किस तरीके से मतलब उसको पंप आउट करने की कोशिश करेंगे। सो मटेरियल भी मैटर करता है, इसका साइज भी मैटर करता है, फिर उसमें फिटिंग्स भी लगेंगी बिकॉज एक पाइप की एक लिमिटेड लेंथ हो सकती है, फिर आप उसको दूसरे पाइप से जोड़ेंगे तो जोड़ते टाइम पे आपको फिटिंग्स एंड वाल्व्स की जरूरत पड़ेगी बिकॉज प्रेशर मेंटेन करना है तो आपको वाल्व की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपने घर में अपने ये वाटर प्लम्बिंग देखा है तो बस इसका स्केल बढ़ जाता है, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, इसमें प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। या कभी आपने देखा हो सीवेज, बहुत लोगों के जो वॉशरूम्स हैं उनका लेवल लो होता है तो वो कभी कभार एक टैंकर मंगवाते हैं और अपना सेप्टिक टैंक को खाली करवाते हैं। सो उसमें आप देखते हैं कि कैसे वो सक करके एक टैंकर में कंप्लीट उसको पंप आउट कर देता है पूरे सीवरेज को।